हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट में यूनिट 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में आज का टॉपिक होगा ऑपरेटर्स इन सी। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दैट वी आर यूजिंग और वी कैन यूज इन आवर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, let us see what is operator. An operator is a symbol that operates on a value or a variable. Operator works on operand. It means when we are comparing operator with our language, in normal we can say in English language the working of verb is similar as a working of operator in programming language. What it means, in English language verb indicates some action. Similarly, operator indicates some action or operation that it perform on operands. So first of all we have to know what is operand. Suppose we want to find addition of two numbers and the numbers are in the form of variable. Say it is, we are writing a plus b. What it means, we are going to find addition of a and b. So in this case the addition operation is performed with the symbol plus, so it is called as a operator. But with the addition of numbers and the numbers are a and b, so here a and b works as a operand. So जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज ऑपरेंड, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है दैट इज ऑपरेटर. ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड वी कैन कैटेगराइज ऑपरेटर इनटू 3 different categories. First one is unary operator, next one is binary operator, and last one is ternary operator. What is a unary operator? When you are writing any operation with only one operand, for example, if you are writing there are 2 different type of unary operator that we are frequently using in our programming. First one is plus plus and next one is minus minus. We can use these plus plus as a increment operator and minus minus as a decrement operator. So इनको यूज करने के लिए when we are using increment operator, so आप या तो ऑपरेंड a के बाद में आप इसे लगाएंगे या किसी ऑपरेंड के पहले लगाएंगे. तो याद रखिए, यूनरी ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए, to perform action with the help of unary operator, it requires only one operand. So we can define unary operator as the operator which requires only one operand to perform action is called as a unary operator. Similarly, some example of binary operator is, suppose we are writing a plus b. To perform action of addition we require 2 operand, right? So on this basis we can define binary operator as those operator which requires 2 operand to perform operation is called as a binary operator. Similarly, ternary operator, the symbol for ternary operator is a question mark. So what is the definition of ternary operator? Ternary operator is an operator which requires 3 operands to perform some action. So next we are going to explain each and every operator in detail. So next one is unary operator. Unary operator we can define as unary operator as plus plus and minus minus. There are 2 unary operator, plus plus and minus minus. Plus plus is called as a increment operator
operator. Similarly, minus minus is called as a decrement operator. राइट, यूनिरी ऑपरेटर दो तरह से हम ये भी यहां यूज कर रहे हैं. ये नॉर्मल है, और भी यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं, उसको डिटेल में बाद में देखेंगे. लेकिन अभी के लिए यूनिरी ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस. यूनिरी ऑपरेटर्स में अगर आप बात करना चाहें So first one is unary operator. What is unary operator? There are two types of unary operators available. और भी हैं लेकिन उसे हम बाद में देखेंगे. जो नॉर्मल यूज करने के लिए यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड नेक्स्ट वन इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल प्लस सिंबल से, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं डबल माइनस सिंबल से. याद रखिए, जब केवल एक ही ऑपरेंड हमें यूज करना है व्हाइल वी आर यूजिंग यूनिरी ऑपरेटर, सो वी कैन प्लेस द यूनिरी ऑपरेटर आइदर इन फ्रंट ऑफ एनी ऑपरेंड और आफ्टर एनी ऑपरेंड. So when we are placing the increment operator before operand, so it is called as a pre-increment, operator, and when we are using after operand, it is called as a post increment operator, right? Similarly, for decrement operator, we can also categorize into two parts. When we are placing it before operand, so it is called as a pre-decrement, and when we are placing it after any operand, then it is called as a post-decrement operator. Right? Next one is binary operator. We can categorize binary operator with the on the basis of their use or on the basis of their values. We can categorize binary operator as, first one is arithmetic operator, next one is relational operator, and the last one is logical operator. क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों, इन सब में डिफरेंस क्या है? व्हेन वी आर यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर, द एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस. These are some arithmetic operators. Remember, when we are using arithmetic operator, it always provides you some value as a result, some numerical values. Suppose a की वैल्यू अगर हमने 3 रखा है, b की वैल्यू 5 रखा है, so when we are using a plus b, it returns you 7, a new value. Might be the same value while performing the operation, but it always provide value. But whenever we are using relational operator, the some example of relational operator is, it forms relational operator used to find the relation, that is, say, equal to, not equal to, less than, greater than,
less than equal to, greater than equal to, and many more. These are some example of relation operator. Relation operator का यूज होता है किन्हीं दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. When you are using a relation operator, it returns you a boolean value. What is the boolean value? Either it will return 1 or it will return 0. इसको हम और कह सकते हैं, अगर किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो रिलेशन दिया गया है, अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इट विल रिटर्न ट्रू, दैट मीन्स 1. और अगर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सो इट विल रिटर्न फॉल्स, दैट मीन्स 0. एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. सपोज वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4. नाउ इफ वी आर राइटिंग a ग्रेटर देन b, सो ये एक ऑपरेटर यूज किया है हमने a ग्रेटर देन b, लेकिन ये आंसर आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल रिटर्न यू एज अ 0. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर. और ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू b से बड़ी है, बट हमने जो वैल्यू दे रखा a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है. सो ऐसे केस में यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स. फॉल्स दैट मीन 0. द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर्स इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स. It again provides you some boolean value, that means in the form of true if the operation is true, or it will return false if the operation is false. Some logical operators are and, or. These are relational operators. Example, if we are using a condition like a is equal to 3 and b is equal to 5. Now if we are writing a and b, so what it will return? It will return value 1. Why? Because we know that all the non-zero positive number indicates true. All the non-zero positive number indicates true. सो इस ऐसे केसेस में 3 ट्रू को इंडिकेट कर रहा है एंड b 5 को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी ट्रू हुआ. तो दोनों अगर ट्रू हैं तो हमें पता है एंड में क्या वैल्यू आएगी? 1. राइट. नेक्स्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए पहले इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं. व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर? First of all, you have to provide some condition. Then question mark, it is a ternary operator. Ternary operator को हम question mark से indicate करते हैं. Then you have to provide statement 1 colon statement 2 then semicolon. How it works? If the given condition is true, then statement 1 will execute, and if the given condition is false, then statement 2 will execute. एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर प्रोवाइडिंग integer a is equal to 5 and b is equal to 7, right? Now we want to find value of c, and we are writing c is equal to a less than b, then question mark, after that you are writing a colon b. राइट. सो अभी देखिए a की वैल्यू कितनी है यहां पर 5, b की वैल्यू कितनी है 7. सो a लेस देन b, ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू. सो ऑब्वियसली ये रन कैसे करेगा? c इज इक्वल टू a, बिकॉज हमने क्या लिखा है? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा. सो कंप्यूटर या कंपाइलर हमारा इसको ऐसे रीड करेगा, बिकॉज द कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, सो c इज इक्वल टू स्टेटमेंट 1 दैट इज a. सो यहां से हमें c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ c एज 7, राइट? नो, इट विल बी 5, बिकॉज अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न करना है?
ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर? ओके। देन यूनिरी ऑपरेटर को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी जैसे हमने आपको बताया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके से काम करते हैं। या तो हम इसको पहले लगा सकते हैं ऑपरेंड के, या इसके बाद में लगाएंगे। अगर पहले लगाते हैं तो ये क्या कहलाता है? प्री इंक्रीमेंट। और अगर इसी को हम बाद में यूज करते हैं तो ये क्या बनेगा? पोस्ट इंक्रीमेंट। चलिए इसके कुछ केसेस एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस वेयर द ऑपरेंड इज ए, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ए प्लस प्लस। इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज द एग्जांपल इज वी आर राइटिंग इंटीजर a is equal to 5. Now we want to find value of b, and we are writing b is equal to plus plus a, right? So after this statement you have to find the value of a and value of b. So याद रखिएगा, when you are using a pre-increment operator, it performs in two different steps. First of all, the pre-increment operator increase the value of a, that is operand, by 1, and then it transfer value to another operation. ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले ये ऑपरेंड की वैल्यू एक बढ़ा देगा। ये कंपलसरी है, एक और सिर्फ एक ही बढ़ाएगा। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले ए की वैल्यू एक बढ़ाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो भी ऑपरेशन है, यहां नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? असाइन करने का, तो असाइन करेंगे। सो ये स्टेटमेंट कुछ काम करेगा। ए इज इक्वल टू, पहले a प्लस 1 होगा, नाउ b इज इक्वल टू a. सो नाउ वी कैन से द वैल्यू ऑफ a विल बी 6 हियर एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 6 अगेन, राइट? बट व्हेन वी आर यूजिंग अ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वी आर यूजिंग द सेम एग्जांपल, इंटीजर a is equal to 5 and we have another variable b. Now we are writing b is equal to a plus plus. So इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? सबसे पहले ये b में वैल्यू को ट्रांसफर करेगा, देन a की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा। सो डिफरेंस क्या हुआ दोनों प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में? डिफरेंस क्या हो गया? प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू बढ़ाता है तब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा या ट्रांसफर करेगा, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू ट्रांसफर करता है देन वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सो इस स्टेटमेंट के बाद, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? इट विल बी 6, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? इट विल बी 5, राइट? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और यही बेसिक डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही केस में जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू एक बढ़ रही है, चाहे हम प्री इंक्रीमेंट यूज करें या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करें। डिफरेंस आता है केवल वैल्यू ट्रांसफर करने में। प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू बढ़ाएगा तब ट्रांसफर करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू ट्रांसफर कर देगा तब इंक्रीज करेगा, राइट? नेक्स्ट वन इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन सिमिलर केस we can define decrement operator in two forms. First one is pre-decrement and next one is post-decrement. Right? Pre-decrement को again ऑपरेंड के पहले लगेगा, that is माइनस माइनस a, and post-decrement ऑपरेंड के बाहर बाद में लगता है, that is a माइनस माइनस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर यूजिंग द सेम एग्जाम्पल, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव अनदर वेरिएबल b. नाउ यू हैव टू फाइंड b इज इक्वल टू माइनस माइनस a. आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? सो हियर वी कैन एक्सप्लेन इट एज b इज इक्वल टू माइनस माइनस a. दैट मीन्स इट विल डिक्रीज वैल्यू ऑफ a फर्स्ट, then transfer value of a to b. a is equal to a minus 1, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, after that b is equal to a. So from here we can say the value of a will be 4 and value of b will be 4 again, right? But when we are using post decrement operator,
we are using same example, say integer a is equal to 5 and we have another variable b. Now we have to perform b is equal to a minus minus. So what will be the value of a and b after executing this statement? We can summarize it and explain it as, it will transfer the value of a first to b, then decrease the value of a. So it will be explained as b is equal to a, statement execute first, then we will execute a is equal to a minus 1. मैन्युअली इन सब चीजों को ये एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, कंपाइलर में जब आप प्रोग्राम करेंगे या किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम करेंगे तो ये कंपाइलर के लिए अपने आप समझने वाली बात है। वो खुद ही समझ जाता है कि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है या प्री इंक्रीमेंट यूज किया है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या होगी 4 और b की वैल्यू क्या होगी 5, राइट। अगेन दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी की बात कर लें अगर हम प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट में, सो व्हेन वी आर यूजिंग अ प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट विल डिक्रीज वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1 फर्स्ट, देन ट्रांसफर द वैल्यू फॉर द अनदर ऑपरेशन. While we are using the post decrement operator, it will transfer the value first, then perform reduce the value of operand by 1, right? Okay. After unary operation, we are using some programming example here. In this program, you can see we are using the variable integer a as 10, b is equal to 100. Now we are using float c is equal to 10.5 and d is equal to 100.5. डेटा टाइप का वीडियो आई थिंक आपने देख लिया होगा और डेटा टाइप से आपको पता चल गया होगा कि इंटीजर और फ्लोट में बेसिक डिफरेंस क्या है. नाउ वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ प्लस प्लस ए. आफ्टर नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ माइनस माइनस बी, देन प्लस प्लस सी एंड माइनस माइनस डी. वीडियो को पॉज करिए और गेस करिए कि आंसर क्या होगा. जो लॉजिक है, लॉजिक से हमें पता चल रहा है इंटीजर ए का जो डेटा टाइप है दैट इज इंट टाइप, सो नंबर होगा. वी आर यूजिंग 10 हियर. सो प्लस प्लस ए क्या काम करता है? इट इंक्रीज वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट, देन ट्रांसफर द वैल्यू, राइट. सो यहां पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितना आना चाहिए? 11. चलिए आउटपुट हम देख लेते हैं, राइट. यहां पे देख सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट का जो आउटपुट आ रहा है इन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिंटफ स्टेटमेंट द वैल्यू इज 11. व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. सो पहले ये वैल्यू ए की बढ़ा देगा, देन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है यहां पर? प्रिंट करने का. सो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? 11. सिमिलरली इट इज प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर. बी की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में? 100. सो पहले ये ए की बी की वैल्यू डिक्रीज करेगा, देन उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा. अगर यहीं पर ये प्लस प्लस ए की जगह पे लिखा होता ए प्लस प्लस, तो आउटपुट तब आपको क्या मिलता? देन द आउटपुट विल बी 10 ओनली, राइट. क्योंकि पहले ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद वैल्यू को बढ़ाएगा. ओके. Now we are using increment operator and decrement operator on the float type data type. So float अगर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली याद करिए जो वैल्यू आपको इंक्रीज करेगा ये इंटीजर नंबर या फुल नंबर जो आपके पास है 10 है तो 10 पे ही वैल्यू इंक्रीज करेगा. सो अगेन वी आर यूजिंग प्लस प्लस सी. सी का डेटा टाइप फ्लोट है तो पॉइंट में इंक्रीज ना करके जो फुल नंबर है 10 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.5 एंड राउंड ऑफ में, बिकॉज ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट आप यहां देख रहे हैं इंक्रीज कर दिया है, जबकि हमने यहां पे 10.5 लिया है. क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई फिल्टरिंग ऑप्शन नहीं देते हैं प्रिंटफ में, सो टोटल आपको 6 डिजिट पॉइंट के बाद आंसर में मिलता है, और इसी वजह से यहां पे आपको पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऑफ जीरो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं. सिमिलरली अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये भी फुल नंबर, जो फुल नंबर का मतलब यह हुआ 100.5 है, तो ये 100 में से एक वैल्यू रिड्यूस करेगा, ना कि पॉइंट के बाद के किसी नंबर्स में. आई थिंक ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर 3 तरह से हैं, हमने आपको ऑलरेडी अभी बता रखा है. कौन कौन से होंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड
लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है। तो इसको एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है। वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, राइट नाउ वीडियो को पॉज करिए और आंसर गेस करिए क्या होगा। अब अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी की वैल्यू 13। कोई इश्यू नहीं है यहां पे, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। a की वैल्यू आपने दिया है कितना 9, b की वैल्यू है 4 और c एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन, सो वी हैव टू राइट c इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर एडिशन ऑफ a एंड b। एंड जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो c की वैल्यू a प्लस बी नॉर्मल 9 प्लस 4 इट इज 13। सो इस प्रिंटफ की वैल्यू 13 आपको मिल रही है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। सिमिलरली a माइनस बी परफॉर्म करेंगे तो आपको a माइनस बी 5 मिल रहा है। ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 36 मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। नाउ द कंफ्यूजन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। c इज इक्वल टू a मॉडल a डिवाइड बाई b। a डिवाइड बाई b यहां पर जो यूज किया जा रहा है, सो a का डेटा टाइप क्या है 9, b का डेटा टाइप क्या है 4। सो इट विल परफॉर्म एन इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन पे यहां पे वैल्यू 2 मिल रही है। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे हम, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझिए। इट मीन्स वी आर डिवाइडिंग 9 बाई वैल्यू 4। 4 टू ज़ा 8, रिमाइंडर आया 1। सो याद रखिए, जब भी आप इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आपको जो कोशेंट में वैल्यू है ये एज अ आंसर मिलेगा। दो तरह से डिवीजन होते हैं इंटीजर डिवीजन में। अगर आप परफॉर्म करते हैं से 9 डिवाइड बाई 4 और एक आप लिख रहे हैं 9 मॉडुलस 4, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब आप 9 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो जो कोशेंट है वो आपको एज अ आंसर मिलेगा, दैट इज 2। और अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा ये आपको आंसर मिलेगा, दैट इज 1, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन कहां पर होती है, सपोज वी आर डिक्लेयरिंग अनदर, दिस इज वन एग्जांपल, वी आर यूजिंग अनदर एग्जांपल लाइक दिस वन। सपोज वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल फ्लोट a is equal to say 9.5 and b is equal to say 4. Now it is integer b. So if we find the a divide by b, what will be the value of a divide b? अब यहां पे अगर कोई भी एक ऑपरेंड a या b, कोई भी एक ऑपरेंड अगर आपका फ्लोट होता है तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो फ्लोट में ही मिलेगा। अगर रिजल्ट को स्टोर हम नहीं कर रहे हैं किसी वेरिएबल में तो ये इस वेरिएबल का जो आंसर मिलेगा वो आपको पॉइंट में ही मिलेगा, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों इंटीजर हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। दो में से कोई भी एक अगर फ्लोट होगा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो फ्लोट में ही मिलेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल। डबल इक्वल का काम क्या है, इफ वी आर यूजिंग डबल इक्वल सो इट टेस्ट वेदर द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट एंड इट विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, ट्रू इफ द इक्वलिटी इज ट्रू, फॉल्स इफ इट इज नॉट इक्वल। सो इस करंट एग्जांपल में एक वैल्यू हमने लिया है 5, दूसरी वैल्यू लिया है 3। 5 इक्वल टू 3, इस क्या ये दोनों बराबर हैं? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं। नहीं का मतलब फॉल्स, और फॉल्स को यहां पे रिटर्न क्या करेगा 0। सिमिलरली ग्रेटर देन अगर हम यूज करते हैं 5 ग्रेटर देन 3, क्या ये कंडीशन ट्रू, ये जो लिखा हुआ है रिलेशन ट्रू है? यस इट इज ट्रू, सो इट विल रिटर्न 1। लेस देन केस में 5
लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली ये फॉल्स हो रहा है, सो यहां पे क्या आंसर आएगा? 0। नॉट इक्वल टू, अगर ये ट्रू है तो आंसर आपको 1 मिलेगा। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऑब्वियसली ये 5 की वैल्यू 3 से बड़ी है या बराबर है, और कंडीशन लगा हुआ है, इक्वल टू के साथ में हमने ग्रेटर देन भी लगा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जहां कहीं भी और का कॉन्सेप्ट आता है तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो में से कोई भी अगर ट्रू होगा तो आंसर आपको मिलेगा 1। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू, राइट? लेट्स डू सम प्रोग्रामिंग विद द रिलेशन ऑपरेटर। We are writing a program with the help of to explain the concept of relation operator. Now, when we are seeing this program, we have the value of a is equal to 5, b is equal to 5, c is equal to 10. In first printf, we want to print the value of a, b and a equal to b. Here we are using a concept of relation operator. So a equal to b, a और b की वैल्यू क्या है? सेम है यहां पर, तो इसलिए पहली वैल्यू, ये तो स्ट्रिंग का पार्ट हो गया जो हमें वैल्यू देना है, 5 इक्वल टू 5 इज 1। वाई इट इज रिटर्निंग 1? बिकॉज यहां पर हमने कौन सा ऑपरेटर लगा रखा है? रिलेशन ऑपरेटर में कौन सा? इक्वल टू। सिमिलरली ए और सी की वैल्यू फॉल्स है यहां पर, बिकॉज ए की वैल्यू कितनी है? 5 और बी की वैल्यू कितनी है? 5, सी की वैल्यू कितनी है? 10। सो ए इज नॉट इक्वल टू सी, ये कंडीशन जो यहां दी है ये फॉल्स हो रही है, इसलिए ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0। ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि यहां तो ए और बी की वैल्यू दोनों बराबर है, फॉल्स है, इसलिए यहां पे वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 0 फॉर दिस वन। ए ग्रेटर देन सी, अगेन इट इज फॉल्स, सो इट इज रिटर्निंग 0, राइट? ए लेस देन बी, अगेन ये फॉल्स है, फिर से आपको रिटर्न कर रहा है, सॉरी, ए ग्रेटर देन, ए लेस देन बी, ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर से आपको 0 मिल रहा है। ए लेस देन सी, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? 1। ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको कितना मिल रहा है? 0। ए नॉट इक्वल टू सी, ये कंडीशन ट्रू है तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? 1। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंडीशन फॉल्स है यहां पर, तो ये देखिए, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो यहां बराबर कंडीशन ट्रू हो रही है और कॉन्सेप्ट है, इसलिए वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 1। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, 0। और इसी तरीके से इन दोनों को भी आप खुद से चेक कर लीजिए, और ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन टेस्ट, टाइप इट एंड रन द प्रोग्राम एंड यू विल गेट द सेम आउटपुट। Next one is logical operator. Logical operator works on some logics. There are 3 types of logical operator. First one is AND, next one is OR, and last one is NOT. NOT boolean टाइप का कह सकते हैं, इसको यूनिरी ऑपरेटर है, इसके लिए केवल आपको एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले हम AND और OR को देख लेते हैं। AND और OR के लिए अगर आप एक ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, ट्रुथ टेबल किस फॉर्म में कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज वी आर यूजिंग 2 सिंबल्स ए बी एंड नाउ वी आर यूजिंग लॉजिकल एंड लॉजिकल और, राइट? इन दिस केस राइट, तो अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो एंड से क्या मिलेगा? फॉल्स, और से क्या मिलेगा? फॉल्स। ए की वैल्यू अगर फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू हो रही है, तो एंड से आपको मिलेगा 0 और से मिलेगा 1। सिमिलरली 1 0 पे आपको क्या मिलेगा? एंड पे मिलेगा 0 और पे मिलेगा 1, एंड फाइनली 1 1, दोनों वैल्यू अगर ट्रू होती है तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे एंड से 1 मिलेगा और से क्या मिलेगा? अगेन इट विल रिटर्न 1। ये ट्रूथ टेबल है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। चलिए पहले को एक्सप्लेन करते हैं। लॉजिकल एंड ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एग्जांपल के लिए सी की वैल्यू हमने लिया है 5, डी इज इक्वल टू 2,
देन सी इक्वल टू 5, ये एक पहले रिलेशन ऑपरेटर यूज किया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सी इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, सो इट विल रिटर्न 1. डी ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स. सो एंड ऑपरेटर लगाया 1 and 0, इस पे आंसर क्या मिलना चाहिए आपको, 1 and 0 पे, ये देखिए एंड पे क्या मिल रहा है 0, इसलिए हमें आंसर क्या मिल रहा है 0. सिमिलरली लॉजिकल और ऑपरेटर क्या काम करता है, ट्रू ओनली इफ आइदर वन ऑपरेंड इज ट्रू, दो में से कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो लॉजिकल और से आपको क्या मिलेगा, 1 वैल्यू मिलेगी. सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं. अगेन यहां पर c इक्वल टू 5, ये 1 मिल रहा है, ये आपको मिला 0, लेकिन जो और ऑपरेशन से रिजल्ट मिलेगा, ऑपरेटर और जो हम यूज कर रहे थे, जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 1. नॉट केवल एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू मिल जाएगा. कैसे इसको समझ लेते हैं. अगर c इक्वल टू 5, देन एक्सप्रेशन c इक्वल टू 5, ये क्या है, c की वैल्यू 5 है, ये ट्रू है कंडीशन, तो ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स, इसलिए यहां आपको वैल्यू क्या मिल रही है 0. इन दिस मैनर यू कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इजिली where we are using some relation operator as well as logical operator. Okay, let's do a programming example. वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड अगर एक बार आप खुद से समझ लीजिए इसको. वी आर यूजिंग द सेम वैल्यू. In first example we are writing result a variable, integer type variable is equal to assigning operator यूज कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, और a और b की वैल्यू कितनी है 5, सो इट विल रिटर्न 1. एंड c ग्रेटर देन b, c की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू कितनी है 5, ये कंडीशन हो गई फॉल्स. सो जब 1 and 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 0. इसलिए जब रिजल्ट को आप प्रिंट करेंगे फर्स्ट प्रिंटफ में, सॉरी, c ग्रेटर देन b, इट इज ट्रू, इट इंडिकेट्स अ ट्रू वैल्यू. यस, सो यहां पर 1 and b जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1 अगेन, सो फर्स्ट आउटपुट आपको जो मिलेगा दैट इज 1. सो जो लास्ट एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया है, इसी बेसिस पे आप इस पूरे प्रोग्राम को चेक करिए और खुद से देखिए. अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे. आई विल रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट. ओके, राइट. नेक्स्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर. वी ऑलरेडी एक्सप्लेन टर्नरी ऑपरेटर. नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर. Bitwise operator, there are some bitwise operator that is available in C language is and, or, bitwise and, bitwise or, XOR, complement, left shift and right shift. ये ऑपरेटर्स हैं. बिटवाइज ऑपरेटर क्यों कहते हैं हम, इसको समझिए पहले आप. देखिए बिटवाइज ऑपरेटर का काम क्या होता है. बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल पे काम करते हैं. बिट लेवल का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार समझने की जरूरत है. सपोज हम आपसे कह रहे हैं देयर आर अ वेरिएबल से इंटीजर a इज इक्वल टू 5, राइट, एंड b इज इक्वल टू से 4. सो इफ यू आर राइटिंग a और b, बिटवाइज ऑपरेशन, एक सिंगल और के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं. सो बिटवाइज का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल you have to convert the decimal number into equivalent binary number. इसका बाइनरी क्या होगा 101. 8 बिट पे हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 3 8 बिट पे कन्वर्ट कर लिया. सिमिलरली b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 को कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5, आफ्टर दैट 1 0 0. बाइनरी कन्वर्जन आपको पता ही होगा. अब आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. और ऑपरेशन का मतलब जो अभी जस्ट ट्रुथ टेबल हमने बनाई हुई थी, उस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे 1 and 0
1, दो में से कोई भी एक बिट अगर आपकी 1 होती है तो आंसर क्या मिलेगा 1 और में, सो 1 0 1 एंड ऑल द अदर बिट्स आर 0, राइट। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ए और बी का डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या होगा 5, सो आंसर आपको मिला यहां पर 5, राइट। सो बिट लेवल का काम, बिट वाइज ऑपरेटर बिट पे काम करते हैं, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द ट्रुथ टेबल ऑफ bitwise operator. When we are seeing, we already discussed the truth table of AND operation in the case of logical. Same value we are getting in the case of bitwise also. So when we are using AND bitwise AND operator, it will return the same as a logical AND. That means if the both bits are 1, then it will return 1, otherwise it will return 0. In opposite side, when we are using bitwise OR operator, it will return 1 if either bit is 1. दो में से कोई भी बिट अगर A और B में से किसी भी की वैल्यू 1 होगी, so ये 1 रिटर्न करेगा, otherwise 0. When we are using XOR operation, it will return here it is same वैल्यू पे ये रिटर्न करेगा 0, it will return as 0, राइट। और कोई भी एक बिट अगर डिफरेंट होती है, सो इट विल रिटर्न 1, जस्ट करेक्ट इट इज 0, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट में अगर वैल्यू आपके पास 0 होगी तो 1 मिलेगा, 1 होगा तो 0 मिलेगा, क्लियर। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। इफ द बिट एक्सऑर ऑपरेशन में दोनों बिट अगर आपको सेम होंगी तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0, और दो में से कोई भी एक बिट डिफरेंट होगी तो आपको आंसर मिलेगा 1, ओके। लेट्स डू इट विद सम न्यूमेरिकल एग्जांपल। वी आर यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू 12, इन दिस केस वी आर यूजिंग 12 डेसिमल वैल्यू। पहले इसका क्या करना, कैसे कैलकुलेट करना रहता है बिट वाइज को। सपोज एग्जाम में दे दिया जाए आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 एंड 25. You can also say it as a integer a is equal to 12, b is equal to 25, then find the value of a and b. So एक and लगा हुआ है तो आपको तुरंत समझ जाना होगा ये बिट वाइज ऑपरेटर की बात कर रहा है। क्वेश्चन में कहीं दिया हो या न दिया हो, एक एंड लगा हुआ है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द बिट वाइज ऑपरेटर। कौन सा, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। तो काम क्या करना होगा, पहले 12 और 25 इनके बाइनरी इक्विवेलेंट आप कन्वर्ट कर लीजिए, बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए। आफ्टर दैट एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते समय जो ट्रुथ टेबल है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर सेम वैल्यू है 1 पे, यहां पर 0 ये 1, तो आंसर क्या मिलना चाहिए 0 1 पे 0, हियर 0 0 पे 0, 1 0 0, 1 1 पे 1, राइट। रेस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज आर आल्सो 0. So you are getting a binary value of 1 0 0 0 and the equivalent decimal is 8. So what will the answer when you are going to find 12 and 25? It will return 8. We can write the program for this one also. We are declaring variable a as 12 and b as 25. Now we are going to find a and b. So it will return a numerical value as 8 while performing bitwise AND operation. We can do the same thing with the bitwise OR operator, but only different is we are using OR here. In this case, bitwise OR we are using here. OR में क्या होता है, दो में से कोई भी बिट अगर 1 है तो 1 आंसर मिलेगा। So 0 1 1 0 1 1 and 1, rest of the values are 0. सो बाइनरी वैल्यू आपको मिल गई 0 0 0 1 1 1 0 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में वैल्यू कितनी मिलेगी 29, सो यू विल गेट द आंसर एज 29। इसी को प्रोग्राम इसके अगेंस्ट में करके हम रन करके भी देख सकते हैं। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द बिटवाइज OR ऑपरेशन ऑन द इंटीजर वेरिएबल a and b, you will get answer 29. Okay, now
if you are performing XOR operation, so we are using same example here also. While performing the XOR operation क्या है कि सेम बिट पर आपको वैल्यू 0 मिलेगी, डिफरेंट बिट पर 1 मिलेगा। तो यहां पे 0 1 दोनों बिट डिफरेंट है तो आपको वैल्यू मिली 1, दोनों बिट सेम है 0, डिफरेंट है 1, सेम है 0, डिफरेंट 1, सेम पर 0, राइट। ये आपको बाइनरी वैल्यू मिली। इस बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, यू विल गेट 21 एंड यू कैन टेस्ट इट विद द प्रोग्राम in such a manner. Again you are providing value for as a integer variable a 12, integer variable b as 25. Now if you are performing XOR operation between a and b, you will receive as a answer 21, right. The next one is bitwise. So next one is बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस सिंबल, टिल्ड सिंबल। इसकी हेल्प से बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज ऑल्सो अ यूनिरी ऑपरेटर। इट मीन्स इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड टू परफॉर्म एक्शन। वी कैन एक्सप्लेन द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर with this example. Here we are using a 35 value, decimal value 35. Now we are first of all converting this decimal value into binary. Now we are going to find the tilde symbol, that means bitwise complement operator with the binary number, and we are getting this value. क्या होता है tilde symbol में? अगर 1 है तो वैल्यू आपको मिलेगी 0 और 0 है तो वैल्यू मिलेगी 1. सो विद दिस वन वी आर गेटिंग दिस बाइनरी वैल्यू, एंड नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग दिस बाइनरी वैल्यू you are getting 220 in decimal. But remember always, whenever you are going to perform the complement operation on 35 with the help of programming, like in this example with the program, when you are performing complement operation on 35, you are getting minus 36 instead of 220. Why? Because this can be done with the help of tools complement, right? So यहाँ जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है टूल्स कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म होता है, इसी वजह से आपको आंसर में 220 की जगह पर minus 36 मिल रहा है. सिमिलर एक्टिविटी व्हेन वी आर परफॉर्मिंग विद अ नेगेटिव नंबर, सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म टूल्स कॉम्प्लीमेंट and then we are getting 11 instead of other values, right? We will make another video by which you can get how we are converting a decimal number into binary number and how we can able to find the complement, either it is a ones complement or twos complement. Because वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से इसको इस टॉपिक को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं. नेक्स्ट वीडियो हम कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बना देंगे, राइट? Okay, so another operator is shift operator. Shift operator is also a bitwise operator. It always perform operation of shifting the bits of binary numbers either in left side or in right side. When we are using a left side shifting, it is called as a left shifting, and when we are shifting bit in right side, it is called as a right shift operator. So there are two types of operator available in case of shift operator. First one is called as a right shift operator and next one is called as a left shift operator. Its syntax की बात कर लें, syntax में we can write in this manner: n right shift operator b, where b indicates the number of bit that we want to shift, right? We can say it is a shift bit, and it is a n indicates the binary number. So n बाइनरी नंबर और b नंबर ऑफ बिट जितना हम शिफ्ट करना चाहते हैं. एग्जांपल के लिए सपोज एक वैल्यू हम ले रहे हैं 212, जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया. कैलकुलेट करने के बाद अब एक लिखा हुआ है 212 राइट शिफ्ट 2. इसका मतलब इस बिट को हमें 2 बिट राइट में शिफ्ट कर देना है. 2 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए राइट शिफ्ट करने से 1 कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर,
और सिमिलर एक्टिविटीज यहां पर परफॉर्म होगी, तो लास्ट में हमारे पास 2 बिट एक्स्ट्रा होंगे। लास्ट में यहां पे देखिए 2 बिट हैं आपके पास, ये 2 बिट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। इसको इंडिकेट करने के लिए हम इस एग्जांपल को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, कैसे 2 बिट शिफ्ट करना है। दैट मीन्स जो बिट आपकी 3rd पोजीशन पे थी वो अब 1st पोजीशन पर आ जाएगी, राइट। आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, राइट। और यहां पर 2 बिट एक्स्ट्रा हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा बिट हमारे पास कम हो रही है, बिकॉज टोटल नंबर कितने थे, 8 बिट का था, अब शिफ्ट हो जाएगा तो कितने बचे, 6 बिट बचे, तो रेस्ट ऑफ 2 बिट्स फिल्ड विद द 0, और ये आपको बाइनरी वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर 7 बिट शिफ्ट करते हैं तो सारी बिट शिफ्ट हो जाएंगे, केवल लास्ट में आपको 1 मिलेगा। इन एग्जाम्पल से आपको पता चल सकता है कि शिफ्टिंग से क्या फायदा है। ऑब्वियसली जब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलर एक्टिविटी विल बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। लेफ्ट शिफ्ट में आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन यूज करते हैं, ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए, और यहां पर फॉर्मेट वही होगा, पहले हम बाइनरी नंबर बताएंगे जिसको शिफ्ट करना है, आफ्टर दैट ये बताएंगे कितने बिट हमें शिफ्ट करना है, राइट। वी आर यूजिंग द सेम एग्जांपल while shifting 1 bit, 0 bit and 4 bit, right? So I think इस एग्जांपल से आपको शिफ्ट ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी कंफ्यूजन होता है आप हमें कमेंट करिए, इसका आंसर हम जरूर देंगे। नेक्स्ट वन इज bitwise complement operator, we already discussed it. Size of operator. What is the use of size of operator? Size of operator is also a type of operator which returns the number of bytes occupied by any constant, variable or array, right? It returns size of any constant, variable, array, structure, जो भी डेटा टाइप आप जानते हैं या कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसका साइज पता करना है कि मेमोरी में कितने बाइट ले रहा है। So you can use size of operator to get the size of any operator, right? Suppose we are writing a program like we are declaring 2 variable as integer a and in character b. Now we are using size of a. So size of, when we are using size of a, it will return the number of bytes occupied by variable a. In such case you can see it is 4 bit because we are using GCC compiler. If we are using Turbo C compiler, so integer will returns 2, while we are using character for size of b we are getting 1. So what is the use of size of operator? Size of operator returns the size of any variable, constant, array, structure that is occupied by these data type in memory, right? Okay, next one is assignment operator. Obviously in general case we are using only one equal symbol, that is called as a assigning operator. Generally हम केवल इसी को यूज करते हैं, but there are some different formats also available. We can use all the arithmetic operator along with the assigning operator, but the applicability or use of this one is when we are writing plus equal to, it should be read as, suppose we are writing a plus equal b, it means we want to say that a is equal to a plus b, a is equal to a plus b. Similarly when we are writing a minus equal b, it means we are want to write a is equal to a minus b. It has same effect. Either you are writing a is equal to a minus b or you are writing a minus equal to b, both will return same value, right? So students, that's all about the operators. I think वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑपरेटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा कितने लोग वीडियो देख चुके हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अभी तक में जितने भी वीडियो हमने बताए हैं सबसे लंबा वीडियो ये बना हुआ है, काफी एफर्ट इसमें लगे हैं। सो प्लीज सारे लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।